Vehicles outside the Congress's Amethi office have been vandalized. The windshield of these vehicles have been found broken. Now, this is the Congress party accusing the BJP goons, as they're calling it, that they have indulged in this vandalism. These are the pictures from Amethi coming in. Exclusive images of how window panes of these vehicles parked right outside the Congress Amethi office, where recently, remember, the suspense has got over and candidates have been announced. Amethi will be represented by the Congress party. By KL Sharma, who's been campaigning now. But the Congress party on this incident has said drunk BJP goons vandalized cars. Congress workers chased the attackers, blamed the BJP. A case has been registered against unknown people on this. चार आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे गेरुआ रंग का अंगूठा रख के आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है, तुम लोगों को मालूम नहीं है। और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। वो तो कहा हम लोग भागे नहीं, मार देते वो लोग हमको। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे वो। पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये डेमोक्रेसी पर हमला है, स्मृति की बौखलाहट है। कांग्रेस कार्यालय में बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र है। राजीव जी के जमाने में कभी ये नहीं हुआ। सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, कभी आप देखिए, गिनती करिए 1 2 3 4। This is BJP's Gundaism, is what the Congress party has said after the vehicles right outside their office were found to be vandalized with the window panes broken. Abhishek Mishra joining me from Lucknow. Abhishek, what time did this happen? What are the details that you're picking up? Because this has turned into a full-blown political showdown. So certainly this happened yesterday where there were people inside the office of the Congress party. A meeting was happening because, as you know, there's a lot of work which the Congress party is currently doing. And then this attack happened and there was a rift between both the workers. But the Congress party workers are claiming that those people are from the BJP, although an FIR has been registered on the unnamed people. But the investigation is underway and it has taken a lot of political attention as well. Fielding KL Sharma on that particular seat, a lot of have already gone through. But now this local attack which has happened is now becoming political, with the Congress party allegating the BJP. Although the investigation is underway and a lot of losses happened to the vehicles which was parked outside the Congress office. Because Rajesh Tripathi of the BJP is joining me, because all these charges are being thrown at the Bharatiya Janata Party over this. So, Mr. Tripathi, tell me this, because the Congress party maintains that this is deliberately being done by the BJP. आपने तोड़वाई है ये व्हीकल जो कांग्रेस अमेठी ऑफिस के बाहर पार्क थे। कांग्रेस पार्टी का सपना टूट गया है। कांग्रेस पार्टी के पास सब कुछ छूट गया है। कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो जानबूझ करके अपनी गाड़ियां तोड़ करके इसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह की नीच और घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। हम लोकतंत्र को उत्सव के तौर पर बनाते हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, तो इस तरह की डेस्परेशन की कोई घटना करने का काम सवाल ही नहीं उठता है। ये काम उनका होता है जो चुनाव हार रहे होते हैं, जो जनता का अटेंशन सीख करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जो सहानुभूति और संवेदनाओं के लिए काम कर रहे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इसी प्रकार का प्रयास करती है कि कैसे वो बेचारा बनकर के सहानुभूति पा करके वोट पा सके। हम तो अमेठी के विकास के मुद्दों के आधार पर वोट की बात कर रहे हैं कि आज अमेठी में कितना परिवर्तन हुआ है। वो अमेठी जिस अमेठी का पूसा हाल नहीं हुआ करता था, बदहाल पड़ी रहती थी, उस अमेठी को आज वास्तविकता में जिला स्तर का बनाने का काम। तो आप मानते हैं फिर जो अटैकर्स है उनको अरेस्ट करके पता लगाना चाहिए किसने किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वर्कर्स का कहना हमने चेज किया और वो बीजेपी के थे। हम बिल्कुल केंद्रीय चुनाव आयोग से अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने भी इस तरह का हमला करने का काम किया है, वो कांग्रेस के लोग हो, वो बीजेपी के लोग हो, वो सपा के लोग हो, वो बसपा के लोग हो, वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। हम स्पष्ट तौर पर इस बात की मांग करते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग कठोरता से कार्रवाई करे। जो कांग्रेस एक वर्कर थे जिनको अभी हमने सुना, उन्होंने कहा त्रिपाठी जी की जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रिप्रेजेंट कर रहे थे अमेठी को, तब तक सब ठीक था। उनका ये बेसिकली कहना है जब से बीजेपी के नेता आए हैं तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कि यही नैरेटिव बनाने का प्रयास करने के लिए तो जानबूझ करके उन्होंने कुछ गाड़ियां के कांच तोड़े हैं। कुछ गाड़ियों के कांच तोड़ करके वो अपना सपना बचाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस बार किशोरी लाल शर्मा, जिसको उन्होंने अपने परिवार के एक बिल्कुल मुलाजिम की तरह से रखा था, उनको आज वो चुनाव लड़ा करके अमेठी की जनता का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जिसको नॉमिनेट कर देंगे, वो जिसको चाहेंगे उसको चुनाव जिता देंगे। चुनाव जीतने के लिए जनता के दिलों में वास करना होता है, जनता के साथ काम करना होता है, उसके सुख दुख के साथ खड़े होना होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने खुद करवाया है, उनके नेताओं ने, उनके वर्कर्स ने खुद ही ऑर्गेनाइज किया है, वो खुद क्यों ऑर्गेनाइज करवाएंगे?
मैं निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है चुनाव में इस तरह की तमाम सारी टैक्टिस होती हैं, जब अपने ऊपर हमला कराया जाता है, स्वयं सहानुभूति बटोरने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कराई जाती हैं। हमने ऐसी तकनीकियां कई बार पहले देखी है, लेकिन हम चुनाव आयोग से अपेक्षा करते हैं कि इस मामले में कठोरता से कार्रवाई Yes, let's hope that the men are arrested and that whoever is behind this should be taken to task. BJP says it's done by the Congress themselves. They want a victim card because they are losing. BJP is winning in Amethi. They want victimhood to prevail and win some sympathy votes over this. Thank you so much, Mr. Rakesh Tripathi, and our colleagues on the ground, Abhishek Mishra as well.